आज आपकी शुरू हो रही है, दैट इज योर प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन. ओके, नाउ सी फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ दिस मल्टीप्लीकेशन ऑफ होल नंबर इज क्लोजर प्रॉपर्टीज. प्रॉपर्टीज सारी सेम ऑलमोस्ट वही है जो आपने एडिशन में पढ़ी थी. सो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज क्लोजर प्रॉपर्टी. जैसे कि एडिशन में आपने क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ा था कि 2 + 4 इज इक्वल टू 4 + 2. इसी तरीके से क्लोजर प्रॉपर्टी मतलब चेंज ऑफ पोजीशन, इंटरचेंज ऑफ नंबर्स. तो यहाँ पे भी वही होगा, 2 × 3 is equal to 3 × 2. I don't think so that many more thing I have to explain here because already in addition property we have seen this. It means we are only changing the positions of the number. We are only changing the order of the numbers or digit given. 2 is the first number here, 3 is the second number here. This side after equal to 3 is the first number here and 2 is the other number. But you can see we have not entered any new digits anywhere. ऐसा नहीं है कि equal to के पहले आपका 2 and 3 है तो equal to के बाद आपका कोई 3 and 5 हो गया या 4 and 2 हो गया. ऐसा कुछ नहीं है. The same numbers are there but only what I have done, I have interchanged their places. Okay, but as a result we will get the same answer in both the categories. This is known as closure property. इसको आप लिख सकते हैं, therefore you keep on noting with me, product of whole number will be a whole number. और एडिशन में क्या था, sum of any two whole number will be whole number. So this is the that is for addition. This is for closure property, that product of any two whole number will be a whole number. जैसे 2 3s are, अगर आप इसको take one more example, 4 × 5 is equal to 20. Then comes your second property, that is commutative property. ये आपकी एडिशन में भी प्रॉपर्टी थी एंड द सेम प्रॉपर्टी यू आर हैविंग इन मल्टीप्लिकेशन. सो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फर्स्ट यू नोट डाउन, देन आई विल एक्सप्लेन यू. Okay children, so two properties we have done, that is one is closure property, second one is commutative property. In commutative property interchange of numbers will take place but answer will remain the same as we have done in the addition. बस वहाँ addition का sign था and here we are having multiplication sign because we are studying the properties of multiplication over whole number. And then another property is closure property, in which if we have the product of any two whole numbers, the answer will be a whole number. Now write down the third property, that is associative property. So children, third one is associative property. You please note down, afterwards I will explain.
So children, third property is your associative property. जैसे for example, I have written three numbers, okay, 6, 9 and 8. जिसमें से 9 और 8 को I have put in a group. I have associated them. Associated का मतलब होता है एक दूसरे से connect होना, एक दूसरे से join करना. So I have joined 9 with 8. Okay, इनको हमने group कर दिया. इसको बोलते हैं group करना. Is equal to. अब इसके राइट हैंड साइड में क्या है, ये लेफ्ट हैंड साइड पार्ट हो गया. अब आप राइट हैंड साइड में आएंगे तो नंबर्स वही हैं 6, 9 and 8. So digits or numbers are the same, but what is difference? Different is group. Here 9 and 8 makes a group, but here 8 is outside and 6 and 9. Okay, 6 and 9 is making a group. So I have changed the positions of the bracket. I have changed the group. Okay. This is known as the property of associative of multiplication over the whole number, which shows if we change the bracket, if we change the position of the bracket, or if we change the groups, okay, then also you will have the same number. अब यहाँ देखिए, आपने BODMAS क्लास 5 में पढ़ा है, उसमें आपने पढ़ा है कि सबसे पहले B stands for bracket. सबसे पहले हम bracket सॉल्व करते हैं. So 9 8 is 72. 6 into 72. Okay, 72 into 6 करिए. What answer you will get? 6 2 is 12, 1, 6 7 is 42, and 1 43. And what the answer we will get here? 6 9 is 54 multiplied by 8, and the answer will be 432. So in both the conditions, whether we have changed the position of the bracket, we are getting the same answer 432. It means this shows that a product of any three whole number 1, 2, 3. Only remember children, this property stands for only and only three whole number, not more than 3, not less than 3. So if the product of three whole numbers, if in case of position change of the bracket, it will remain the same. That is your associative property. Now write the fourth one, that is your multiplicative property of 0. So now multiplicative property of 0. इसमें first you note down the example. If we multiply any number by 0, the answer will be 0. चाहे वो कितनी भी बड़ी डिजिट हो या कितनी भी स्मॉलेस्ट डिजिट हो, बट आप जब भी किसी नंबर को, किसी डिजिट को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, एज आंसर यू विल गेट 0. That is known as multiplicative property of 0. And some of the books you will get as multiplicative identity of 0. Okay, so both the things are the same one, so no need to worry, they both are the same thing. So multiplicative property of 0 or multiplicative identity of 0 says that if you multiply any digit by 0, the answer will be 0. अब आप जल्दी से फिफ्थ प्रॉपर्टी नोट कर दीजिए, दैट इज द लास्ट प्रॉपर्टी, नॉट लास्ट प्रॉपर्टी, सेकेंड लास्ट प्रॉपर्टी, दैट इज ऑल्सो इजी वन, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 1, which in some of the books they write it as multiplicative identity of 1. तो उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है कि हमने प्रॉपर्टी पढ़ा था, ये आइडेंटिटी कहाँ से आ गई. They both are the same thing, it's only a language issue, nothing else. So multiplicative property of 1, when you multiply any number, for example, when you multiply any number by 1, the answer will be the number itself. Okay, it means this property states that when you multiply any whole number by 1 is the main thing here, that's why it is known as multiplicative property of 1. If you multiply any number by 1, the answer will be the number itself. 500 ones are 500, 2 ones are 2, 3 ones are 3, 4 ones are 4, whatever it is. Okay, so I don't think so that I need to write any statement here. I hope these two properties are very simple and you know, because in class 5 also you have learned those properties. Now comes your last property, that is your distributive property. So note down this property. This is your last one, distributive.
So I will start with the lowest example क्योंकि इसमें आपको काफी कुछ समझना है, but I will start from the lowest example. I have taken a very simple example. Distributive property शायद आपने क्लास 5 में पढ़ी है. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है कि अगर आपके पास 70 टॉफीज हैं, आपका बर्थडे है, आपके क्लास में 70 बच्चे हैं, यू हैव ब्रॉट 70 टॉफीज, वन फॉर ईच चाइल्ड, एंड यू वांट टू डिस्ट्रीब्यूट दोज टॉफीज इन द क्लास. इट मीन्स यू वांट टू शेयर दोज टॉफीज विद योर क्लासमेट्स. ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है शेयरिंग. किसी भी चीज को जो आपके पास ज्यादा है उसको आपने डिस्ट्रीब्यूट करा. ठीक है, आप रिसेस में लंच लाते हो, आप फ्रेंड्स के साथ करते हो और आपको लगा कि नहीं आज तो हम बहुत अच्छा लंच लाए, मम्मी आज थोड़ा सा ज्यादा रख देना बिकॉज आई वांट टू डिस्ट्रीब्यूट इट टू माय फ्रेंड्स ऑल्सो. और फिर आप रिसेस में क्या करते हो, यू शेयर योर टिफिन एंड देन डू व्हाट इट इज ओनली अ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. ओके, तो अब ये तो हो गया बहुत ही लाइकली से एग्जाम्पल. नाउ यू कम बैक टू द नंबर्स. अब यही प्रॉपर्टीज हम नंबर्स पे अप्लाई करेंगे. अगर सपोज करिए आपके पास 3 होल नंबर्स हैं, 2, 5 and 3. Okay, don't see this part, leave it, just now you focus on this part. So 2, 5 and 3 3 numbers हैं जिसमें आपके पास 5 plus 3 in group है, grouping में है और in bracket है. अब ये 5 और 3 तो एसोसिएट हो गए. ओके, इन्होंने तो अपना ग्रुप बना लिया, बट 2 is outside the bracket. अब 2 की प्रॉब्लम ये है कि 2 को 5 के साथ भी डिस्ट्रीब्यूट होना है और 2 को 3 के साथ भी डिस्ट्रीब्यूट होना है. ठीक है, जैसे सपोज करो आप रेसेस में वेदिका, गर्विता और निष्ठा मल्होत्रा, ये 3 बच्चे हैं. अब निष्ठा मल्होत्रा को गर्विता के साथ भी फ्रेंडशिप बना के रखनी है और वेदिका के साथ भी फ्रेंडशिप बना के रखनी है. अब वो क्या करेंगी? ठीक है, यही प्रॉब्लम 2 के साथ है. 2 wants to be with 5 also and 2 wants to distribute himself with 3 also. Now, how we will do that? इसलिए 2 ने पहले 5 के साथ एक ग्रुप बना लिया कि भाई तुम भी खुश रहो. ठीक है, प्लस का साइन है बीच में तो प्लस का साइन आप लगाओगे. और फिर सेकेंड इशू में 2 ने 3 के साथ ग्रुप बना लिया टू मेक 3 also be happy. ओके, इस तरीके से 2 is distributed with 5 also and 2 is distributed with 3 also. ये हो गई आपकी एक प्रॉपर्टी की एप्लीकेशन. अब इन एवरी केस आपने जितनी भी प्रॉपर्टीज अभी तक लगाई है, सारी प्रॉपर्टीज में आप देखिए आपने हर प्रॉपर्टी में एक्सेप्ट द फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी जिसमें आपका होल नंबर वाला आ रहा था मल्टीप्लिकेशन का प्रोडक्ट, उसके अलावा सारी ही प्रॉपर्टी में चाहे वो इक्वल टू के इधर दोनों साइड में आपने जब भी सॉल्व किया है, चाहे वो एसोसिएटिव हो, कम्यूटेटिव हो, हर प्रॉपर्टी में यू आर गेटिंग द सेम आंसर. वो अगर आपका चेंज हो गया तो आप समझ जाइए कि आपने प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ कर दिया है. अब आप देखिए व्हाट द आंसर यू विल गेट हियर. अप्लाई द बॉट मास. 5 plus 3 8 and 2 multiplied by 8 is 16. अब आप आओ इधर. 2 5s are 10 and 2 3s are 6 and the answer is 60. So in both the conditions you can see equal right hand side also and left hand side also of equal to you are getting 60 as a answer. It means कि आपने जो भी प्रॉपर्टी लगाई है that is absolutely correct. आपका डिस्ट्रीब्यूशन करेक्ट है. मेन चीज ये है. ठीक है, आपका ग्रुपिंग ठीक है, आपका डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है, आपका एडिशन का साइन ठीक है. सो डोंट गेट कंफ्यूज. इसमें यहाँ सबसे कॉमन मिस्टेक जो होती है वो बच्चे करते हैं इस एडिशन के साइन पे. एडिशन वो अंदर कर देते हैं और इनटू बाहर कर देंगे, मल्टीप्लिकेशन साइन बाहर कर देंगे. दैट इज द वेरी कॉमन मिस्टेक विच आई यूजुअली गेट इन चेकिंग द पेपर्स. आपको यहाँ ये ध्यान रखना है, ये प्लस का साइन है, ये प्लस साइन हमेशा बीच में आएगा. आप ये ध्यान रखो. 2 के बाद मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो 2 मल्टीप्लाई 5 से होगा एक बार और 2 मल्टीप्लाई 3 से होगा दूसरी बार. ओके, और ये प्लस का साइन आपका एज इट इज बीच में आएगा. अच्छा, वन मोर एग्जाम्पल आई वांट टू शो यू दैट इज अ लिटिल बिट ट्रिकी एग्जाम्पल. सो यू प्लीज नोट डाउन दिस एग्जाम्पल. ये थोड़ा सा ट्रिकी है आपके लिए. अब आप इसको ध्यान से समझिए. इतना आसानी नहीं, इतने आसानी से जरूरी नहीं है कि आपको यूनिट टेस्ट में या किसी भी टेस्ट में क्वेश्चंस मिले. हो सकता है ये तो बहुत सिंपल वे हो गया. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का सबसे सिंपलेस्ट एग्जाम्पल है. ठीक है, अब आप थोड़ा सा ट्विस्टेड एग्जाम पे आइए. सपोज करिए आपको ये क्वेश्चन गिवन है एंड द क्वेश्चन इज यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सॉल्व दिस क्वेश्चन. ठीक है, कहीं प्लस का साइन तो है नहीं. इसका मतलब अब आपको इस स्टेप से और एक स्टेप पीछे की तरफ जाना है और इससे एक स्टेप पीछे का जो स्टेप है वो ये है. ये स्टेप आपको गिवन है. यहां से आप ये वाला स्टेप लाएंगे और फिर वहां से आप थर्ड स्टेप में ये स्टेप लाएंगे.
ये वाले अगर स्टेप्स में इस फॉर्म में क्वेश्चंस आते हैं तो आप समझ जाइए, यहाँ पे आपको ये ग्रुपिंग शो करना पड़ेगा अपने आप, क्योंकि ग्रुपिंग के बिना यू आर नॉट एबल टू अप्लाई द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। ओके, अब आप देखो 84 है आपके पास, आपने इससे पहले की एक्सरसाइज में देखा है जहां हमने एस्टिमेशन किया था, वहां हम 100 माइनस 2, 100 प्लस 2, कभी कभी शायद 10, ठीक है, इस तरीके से इन द टर्म्स ऑफ जीरोस हम अप्लाई करते थे एप्लीकेशन। नाउ व्हाट वी विल डू, 98 को हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं 100 माइनस 2 में। कोई जरूरी नहीं है कि ये प्रॉपर्टी प्लस की लगे, ठीक है, हम इसको माइनस में भी लगा सकते हैं, क्योंकि हम जो पढ़ रहे हैं दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, दैट इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन कि हम केवल एडिशन को ही अप्लाई करेंगे। इट कैन बी अप्लाइड इन बोथ द वे ऑन बोथ द ऑपरेशंस ऑफ प्लस ऑल्सो एंड माइनस ऑल्सो। सो सपोज 98 को हमने ब्रेक डाउन करा 100 माइनस 2 में। अब ये 100 माइनस 2 आप देखो, ये आपका इसी फॉर्म में बिल्कुल क्वेश्चन आ गया। 2 की जगह 84 है, मल्टीप्लाई का साइन ग्रुप के अंदर, 5 की जगह 100, प्लस की जगह माइनस, 3 की जगह 2, बिल्कुल उसी डिस्ट्रीब्यूटिव फॉर्म के एप्लीकेशन में ये क्वेश्चन हमारा सेट हो गया। तो अगर आई मीन टू से, अगर इफ यू आर गेटिंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इन एग्जाम्स एंड इट इज आस्क्ड फ्रॉम यू दैट यूज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, प्लीज डोंट गेट टेंशन एंड पैनिक कि हमने तो ऐसा क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं है, ठीक है, ये तो सबसे इजीएस्ट वे है। लेकिन अब आपको थोड़ा ट्रिकी चीजें समझनी है, तो अगर इस तरीके से क्वेश्चन हो तो आप तुरंत समझ जाइए डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब है कहीं ना कहीं हमें इन दोनों में से कोई एक नंबर तो ऐसा मिलेगा ही मिलेगा आपको, जो आपको ब्रेक थ्रू करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 98 हमने ब्रेक थ्रू कर लिया 100 माइनस 2 में। अब आप क्या करोगे, अब आप सिंपली ये वाले पार्ट पर आ जाओ, ठीक है। सो नाउ 84 इज मल्टीप्लाइड बाय 100 इन वन ब्रैकेट, ठीक है। अब आप 84 को 100 में भी करोगे और 84 को 2 में भी करोगे। Here is the sign of minus, put the sign of minus, then 84 multiplied by 2 in one bracket. अब आप इसको सॉल्व करिए। So it will be 8400। देखिए, अगर हमसे ये पूछा गया होता कि only expand in the form of distributive property, तो मेरा यही आंसर हो जाता and I will write here answer, ठीक है। कोई जरूरत नहीं थी हमें सॉल्व करने की, जैसे हमने इसमें किया था। But we are getting the question that solve 84 multiplied by 98 by distributive property of multiplication. So इस केस में आपको यहाँ पे पूरा solution दिखाना पड़ेगा, you will get one answer. So 8400 minus 84 multiplied by 2 168. Okay? अब आप इसको देखो, अब आप इसको solve करो and by subtracting we are getting 2, 3, 2 and 8. So our final answer will be 8,232. That will be your final answer. यहाँ तक अगर आपका क्वेश्चन आएगा then only you will get the full marks. ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप अगर इसमें इस तरीके से क्वेश्चन आता है, ये तो खैर इजी वन है, ये आप कर ही लोगे। ये अगर इस वे में क्वेश्चन आता है तो आप तुरंत ये समझ जाइएगा कि ये स्टेप अब आपको लाना है। तो इस स्टेप को लाने के लिए इन दोनों में से कोई एक नंबर क्वेश्चन में जरूर ऐसा आपको मिलेगा जिसको कि आप ब्रेक कर सके। 100 प्लस 2 में, 100 प्लस 4 में, 100 माइनस 2 में, वो आपको देखना पड़ेगा कि वेदर यू नीड माइनस साइन और वेदर यू नीड पॉजिटिव साइन, प्लस साइन। ओके, सो यू विल बाइफरकेट दिस 98 into 100 माइनस 2, या जो भी नंबर मिलेगा उसको आप बाइफरकेट करोगे। आपको इसी फॉर्म में क्वेश्चन को लाना है चेंज करके, एंड आफ्टर चेंजिंग दिस क्वेश्चन यू विल गो टू द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, यू विल अप्लाई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। आप ब्रैकेट्स एक्सपैंड करेंगे, शेयर करेंगे जो भी नंबर इधर होगा उसको इन दोनों ग्रुपिंग के नंबर में से, एंड देन यू विल सॉल्व इट। पूरा कंप्लीट सॉल्व होगा, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, दो ही ऑपरेशंस मिलेंगे, या तो प्लस मिलेगा या माइनस मिलेगा। सो दिस मच वी आर हैविंग ऑल ओवर 5-6 प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अगर मान लो यहाँ 102 होता तो ये क्या बनता, 100 प्लस 2। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि ये 100 माइनस 2 है, 100 प्लस 2 है। हो सकता है 10 के टर्म्स में मिले, हो सकता है 1000 के टर्म्स में मिल जाए, हो सकता है 10,000 के टर्म्स में मिल जाए, बट यूजुअली इतना बड़ा नंबर प्रॉपर्टीज में नहीं मिलता है। मतलब करने को तो हम लोग लाख मिलियन भी कर सकते हैं, बट यूजुअली यू विल नॉट गेट एनी बिग नंबर यूजिंग द प्रॉपर्टीज। ओके, तो प्रॉपर्टीज के क्वेश्चन जब भी आएंगे आप ये समझ लीजिए कि 100 के ही अंदर ही आपको बाइफरकेशन के लिए मिलेगा।
ओके, सो यू प्लीज नोट डाउन दिस। हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी थी, जिसमें हम क्या था हमारा, हम एक बार जल्दी से रिवाइज करा देते हैं 2 मिनट में, कि प्रॉपर्टी जब भी आप दो होल नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, योर आंसर विल बी, योर प्रोडक्ट विल बी अ होल नंबर ओनली। सेकेंड प्रॉपर्टी आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी थी, जिसमें आपने इंटरचेंजेस ऑफ प्लेसेस करे थे, 2 into 3 is equal to 3 into 2 कर दिया था। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी थी जिसमें आप किसी भी 3 होल नंबर्स का प्रोडक्ट अगर लेते हैं तो वो चेंजिंग ऑफ ब्रैकेट के बाद भी सेम रहता है। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0 थी, जिसमें आप 0 से मल्टीप्लाई करते हैं एंड यू विल गेट द आंसर एज अ 0। इफ यू मल्टीप्लाई एनी होल नंबर बाय 0, द आंसर विल बी 0। Then comes the fifth property, multiplicative property or multiplicative identity of 1. If you multiply any whole number, you will get by 1, you will get the number itself. Then comes sixth property, the last one, distributive property, as I have explained. So children, I hope you have enjoyed today's class. Okay.